Hello, my dear students. This is Rajesh Kumar, PGT Geography, KB number 1, Jammu. The topic that we are going to discuss today is structure of physiography. The topic that we covered today is plate tectonics. Actually, first of all, we should know about the term plate. The plate comes from the tectonics of the Latin language, which derived from the lactovicos of the Greek language, whose means is construction. Okay, plate means construction, which is derived from the Greek word. Okay, now first of all, we should try to understand about the term plate is was used by the Tujo Wilson in 1967. The plate word is used by the Tujo Wilson. He was from the Canada, and the term plate used was in 1967. In the same year, the plate tectonics word used by the Morgan in the 1967, and D.P. McKenzie, R.L. Parker were also the used the term plate tectonics. Okay. Now, plate tectonics actually, which means is lithosphere. Okay, means plate tectonics also called lithosphere. Now we start the plate tectonics. First of all, it is important to know that the Earth's crust is broken up into large pieces called the tectonic plates. Remember, tectonic plates are giant pieces of the Earth's crust that fit together and move around on the sun, Earth's surface, not sun, on the Earth's surface. This movement can be observed and measured using GPS system, and the edges of the plate can be detected as their edges can be seen. We also know that those plates move around with respect to one another. Earthquakes and volcanoes are the result of such plate movement. How and why do plates move? This is the most important topic. How and why do plates move? Number one, thermal convection. Scientists believe that one of the primary force behind plate movement is thermal convection. Thermal convection is when heat from the core of the earth is transferred to the surface of the earth by the mantle. The mantle is the thick, mostly solid, mostly solid layer of the earth between the crust and the core. Thermal convection works as a lot like a pot of boiling water. In convection, heat from the stove warms up to water closest to the stove, causing the water to expand and rise. Cooler water near the surface of the pot sink to take the place of the rising water. So, this is the process of the movement of the plates. Mainly, there are three causes of the when plates are moved: mantle convection, ridge push, and slack push. Okay, most of the scientists has advocated there are two causes of the movement of the plates. Number one is gravity force towards the equator.
Actually, gravity force and the buoyancy force or force to buoyancy. Okay, Jal Plavanta, force to buoyancy, and the gravity force. These force work toward the equator, and the second force is the tidal force of the moon and the sun. Okay, towards the western side. Okay, so these are the two forces are responsible to break down or broke down of the Pangea. Actually, we should know what is the Pangea. Pangea, it is also a Latin word which means is supercontinent. Okay, supercontinent. Actually, the Pangea continent was broken before the 250 million years ago in the Paleozoic, Mesozoic, okay, which means is whole earth. Pangea means whole earth. Okay, so this is the short summary about the plate. So plate is a Latin word. Okay, and we discuss about the how and why do plates move. We discussed. Okay, actually, you can say uh, that if we boil water in the pot on the stove, so what would be happen? Actually, convection force would be start. So this is the reason of the movement of the plates and causes of the volcanoes and the earthquakes. Okay, plate tectonics, since the advent of the concept of the sea floor is spreading the interest in the problem of the distribution ocean and continent was revived. It was in 1967, or in the same year the plate word, remember plate word was used by the Tujo Wilson from Canada in the 1967. Okay, and similarly the Morgan was used the plate tectonics. Remember and keep in your mind plate word used by the Tujo Wilson in the 1967 and the plate tectonic word used by the Morgan in 1967. Okay, so Mackenzie, Parker, and also Morgan. Okay, now lithosphere. What is lithosphere? Actually, lithosphere it is the crust part from the uh, crust to asthenosphere. That's the width of near about 50 to 100 kilometers. Okay, so lithosphere, you can say it is a plate. Now you are watching in this slide active volcanoes, plate tectonics, and the ring of fire. Actually, Pacific region, or you can say the boundary of the western part of the USA or the North America is also known as the ring of fire. Why it is also known as the ring of fire? Actually, it is the active region of the uh, volcanoes and frequently feel the earthquakes. Okay, so ring of fire you are watching in this slide, and plate tectonics. Actually, we discuss about the what is plate tectonics. Plate means lithosphere. Okay, width 50 to 100 kilometers. Okay, and as we know, Earth has the three main layers: Sial, Sima, and Nephi. Okay, actually, I don't want to discuss about the Wagner's theory, Wagner's continental drift theory. What is this? उसने कहा कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया पेंजी यानी सुपर कॉन्टिनेंट का. इट वॉज ब्रोकन इन दी 250 मिलियन ईयर्स अगो. वाई? टाइडल फोर्स of the moon and the sun,
ओके, एंड द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये उसने उसके कॉजेस दिए। लेकिन हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं, हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स, और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ऑल्सो बेस्ड ऑन दी Wagner's theory, Wagner's continental drift theory. Okay, so how many major plates are there? Actually 7 major plates are there. We will discuss later about these plates and the minor plates. There are 9 minor plates. Okay, so what are name the major plates? So these are, number 1, you are watching the North American plate, South American plate, African plate, okay, and the Eurasian plate, and the Indo-Australian plate, and the Antarctican plate. So these are the major plates. Okay, एक्चुअली थोड़ा सा वैगनर के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आज से 250 साल पहले, okay, before 250 million years ago, the Pangea supercontinental world was broken up. Okay, the two forces were responsible for that breakdown of the Pangea. Okay, so tidal force and the gravity force. Clear? उन्होंने एक बात और कही कि पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के आसपास एक पेंथालासा नाम का ओशियन था। ठीक है, जो इसके चारों तरफ, पेंजिया के चारों तरफ था, और इन फोर्सों ने इक्वेटर की तरफ और वेस्टर्न पार्ट की तरफ पेंजिया को तोड़ दिया। ओके, पैलेजोइक एज में, मेसोजोइक एज में, आज से 250 मिलियन साल पहले, लगभग आप कह सकते हैं 25 करोड़ साल पहले, बिफोर 25 करोड़ ईयर्स अगो द पेंजिया वॉज ब्रोक डाउन, है ना, और उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो पेंजिया के चारों तरफ एक पेंथालासा ओशियन था। ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड, और साउदर्न पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आते हैं, और जो ऊपर का पार्ट था अंगारा लैंड, विच इज नाउन एज द लैंड मास एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया। ओके, सो you are watching the plate tectonics and the ring of fire, active volcanoes. Clear? Now you are watching in this slide the minor plates. So first of all, you should look at towards the North American plate. In the western part, you are watching Juan de Fuca, number 1, just down located कोकोस प्लेट 2, उसके नीचे नजका प्लेट। ओके, नाउ प्लीज लुक और try to find out the South America plate and look at the bottom eastern part where is situated the Scotia plate and the Caribbean plate, 1 2 3 4 5 plate. Okay, now Arabian plate 6 7, Caroline plate. Okay, look at on the upper part of the Australia, Caroline plate, Philippines plate, and the Bismarck plate, which is situated near the Carpentaria Gulf of Australia. So these are the minor plates. Okay, now next, plate tectonic, the beginning. At the beginning of the 20th century, scientists realized that they could not explain many of the Earth's structure and processes with a single theory. Many scientists' hypotheses were derived to try and support the conflict observation. One hypothesis was continental drift. We talked already. महाद्वीप प्रवाह कर रहे हैं, बह रहे हैं, कोई कॉन्टिनेंट किसी के पास आ रहा है तो किसी के पास जा रहा है, एंड यू आर वॉचिंग द अल्फ्रेड वैगनर. ओके, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज गिवन इन 1912 by the Alfred
Wagner. So we discuss, and plate tectonic theory is based on the Wagner's theory. Plate tectonic, the beginning. Okay, actually, in this slide, you are watching the two arrows between Africa and the Latin America. Why? What is it showing? It is showing that if we do want to fit the Africa and the Latin America, so that is possible. Okay, it is also known as the jigsaw fit theory. Okay, अगर लैटिन अमेरिका का पार्ट और अफ्रीका के पार्ट को मिलाया जाए तो ये मिल सकता है. सो दिस इज द सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स. और ये इस बात को बताता है कि पहले कभी ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे, सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थे, बट बिफोर 250 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट वाज ब्रोकन अप by the two forces. Okay, so the idea for Wagner's theory was sparked by his observation of the nearly perfect fit of the South American and the African continent. Okay, now second evidence, the Glisopteris. एक्चुअली ग्लेसोप्टेरिस ये एक प्लांट है जो कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ये पाया जाता है. एंड दी लैमिंग एनिमल्स जस्ट लाइक ए रैट which is whose fossils are found in the Europe and the North America. So this is also a third evidence to clarify or justify that the all continents were one or the part of the supercontinent Pangaea. Okay, so water tectonic plates we already discussed, and we also already discussed about the interior part of the earth. Okay, India has the three main layers, Sial, Sima and the Nephi. Okay, so crust, mantle and the core. Crust part, the density of the crust part is 2.67. Sial, actually this Sial word is made up by two minerals, silica and the aluminum. Sima, silica plus magnesium, and third one is core. This is also known as the Nephi, nickel plus ferrium. So it is made up by the solid iron. Okay, and density 17 gram per centimeter cube. Okay, what are tectonic plates? We already discussed. Lithosphere is also known as the tectonic plate. There are 7 major plates and 9 minor plates we discussed. What are tectonic plates? We already discussed. What are tectonic plates? Continued. Okay, we already discussed example of the stove and the pot. Okay, अगर हम आप सोचिए प्लेट्स में मूवमेंट क्यों होता है, तो इसके लिए वी टेक अ सुटेबल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द व्हाई डू प्लेट्स मूव. ओके, अगर एक पोट में, एक केटली में हम वाटर लेंगे और नीचे से स्टोव को हम ऑन कर देंगे, जलाएंगे, तो पानी में क्या होगा? कन्वेक्शन होगा, है, और वो कन्वेक्शन ऊपर जाएंगे. ठीक है, और उसमें हलचल पैदा होगी पानी के अंदर. ठीक है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा, तो उसमें कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, कई साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा है कि मूवमेंट के लिए 2 फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कन्वेक्शन की बात कही गई है. ओके, तो यहाँ आप वही चीज़ देख रहे हैं. अर्थ के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है, वो बहुत गर्म है, निकलने का ट्राई करता है, तो कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाता है. दैट्स वाई प्लेट्स आर मूव. ओके, नाउ second point is also very important, the boundaries of the plate tectonics. So there are 3 boundaries of the plate tectonics. Actually, convergent boundary, divergent boundary and the transform boundary. Convergent boundary क्या होता है? Convergent boundary में when two plates move towards the each other, जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ टकराती हैं. ओके, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री when 2 plates move away from each other. Okay,
दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड टू ईच अदर, मूव स्लाइड टू ईच अदर, जब एक दूसरे के आसपास से होकर के, जब एक दूसरे के आसपास से होकर ऐसे निकल जाती हैं, इस तरह से निकल जाती हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्म। और जब दो प्लेट ऐसे आपस में टकराती हैं तो कन्वर्जेंट। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, सो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल से गुजर जाती हैं। उसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वोल्केनोज आते हैं। ठीक है ना, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से क्या आता है, वोल्केनो आते हैं। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका क्या है, हिमालय माउंटेन। एक्चुअली द बिल्डिंग ऑफ द हिमालय माउंटेन इज अनदर थ्योरी। ओके, दैट इज ऑल्सो दैट इज नोन एज द क्रॉबर थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा मैं बहुत 30 सेकंड के लिए उसे भी आपको बता देता हूँ कि हिमालय का निर्माण कैसे बना। एक्चुअली हुआ ये कि जो अंगारा लैंड है, जिसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, और गोंडवाना लैंड जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका, ये कंट्रीज आते हैं। ओके, तो हुआ क्या कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड अपनी जगह पर स्टेबल था और गोंडवाना लैंड नीचे से पुश कर रहा था। उन दोनों के बीच एक जियोस्क्लाइन था, भूसन्नति, एक गड्ढा था। लाखों साल तक वो गड्ढा फिलअप होता रहा सेडिमेंट से, और वो फिलअप हो गया। लेकिन उस दौरान भी ये जो गोंडवाना लैंड है, और आज भी वो ऊपर की तरफ मूव करता रहा, मूव टुवार्ड्स, रेगुलरली मूव टुवार्ड्स, कंटिन्यूसली मूव टुवार्ड्स। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो जियोस्क्लाइन था, जो भर चुका था विद द फिलअप, इट वाज फिलअप बाय द सेडिमेंट्स। ओके, तो गोंडवाना लैंड ने उसको पुश किया, तो अंदर का जो मटेरियल था वो फोल्ड होकर के ऊपर उठ गया, जिससे क्या बना, हिमालय माउंटेन। और जहाँ फोर्स ने कम काम किया वहाँ पर छोटी छोटी पीक्स बनी, और जहाँ फोर्स ने बिल्कुल ही कम काम किया तो वहाँ डेजर्ट बन गया। ओके, सो ये जो थार डेजर्ट है, विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टेथिस ओशियन। ये एक टेथिस ओशियन का ही पार्ट है, और आज भी वहाँ पर फॉसिल्स निकलते हैं फिश वगैरह के। इस बात के एविडेंस है कि वहाँ पहले कभी एक शी हुआ करता था, विच इज़ नॉन एज द नेमली व्हाट, टेथिस। कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर, ओके, इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्लियर? नाउ डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट में क्या होता है, व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे टू ईच अदर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री। इससे क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, इससे जब दो प्लेट भाई एक दूसरे से दूर चली जाएंगी तो उनके बीच का जो जगह है वहाँ तो फिर स्प्रेडिंग होगा ना। हैरी हेस ने इस थ्योरी को भी समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, यहाँ पर आप यही देख रहे हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वॉज द प्रपोज्ड बाय द हैरी हेस, ओके, इन द अर्ली 1960। क्लियर? यहाँ आप इस को देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कहीं क्रैक्स पड़ जाते हैं, और इससे मेनली ओशनिक रिज बनती हैं। सबसे बड़ी रिज कहाँ पर है पता है? सबसे बड़ी जो रिज है वो है मिड अटलांटिक ओशन। ठीक है, वो सबसे बड़ी रिज है, और ये रिज क्यों बनी? ये बनी है डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट की वजह से। क्लियर? और यहाँ आप एक एरो से देख रहे हैं सेकंड इमेज में, मिड अटलांटिक रिज। जो हमारा ये ओशन है ये एस शेप में है, ये हमने आपको बता दिया है। मोल्टन मैग्मा के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। सी फ्लोर एक्सप्लोरेशन इज डेटिंग, ओके, सी फ्लोर के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये किसकी वजह से होता है? डाइवर्जेंट की वजह से होता है। जब व्हेन टू प्लेट्स
मूव अवे टू ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। कन्वर्जेंट से क्या बना, माउंटेन। डाइवर्जेंट से क्या बना, रिज। अब आ गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक्चुअली अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले टूजो विल्सन के बारे में, ठीक है। तो टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट वर्ड के बारे में बताया था, और ये जियोफिजिस्ट थे, ओके। कहाँ के, कनाडा के थे, ओके। इन्होंने भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के ऊपर अपना विचार रखा। विल्सन इन 1963 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेशनरी हॉटस्पॉट वेयर द हीट फ्रॉम द मेंटल could affect the thin crust, forming volcanic islands such as Hawaiian Island। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से कभी कभी लेक्स भी निकल आती हैं, स्प्रिंग भी फूट निकलते हैं। इनको रचनात्मक किनारे भी बोला जाता है, ओके। कोई नई रचना इनसे हो जाती है, कोई आइलैंड इनसे बन जाता है, ओके। कोई आर्क इनसे बन जाता है। So you can take a screenshot, okay। Wilson in 1965 proposed the transform boundary as the third type of the plate boundary। Clear? ये आपको समझ आ गया होगा। और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री थी उसको विध्वंसात्मक भी बोलते हैं, जिससे कुछ नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। लेकिन माउंटेन भी उससे बनते हैं। और ये है रचनात्मक। प्लेट मूवमेंट क्यों होता है हमने डिस्कस कर लिया, कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। ये लिथोस्फीयर है और नीचे आपको पता है कि बहुत मोल्टन है और वो बाहर निकलने का ट्राई करता है, ठीक है, जिससे कन्वेंशन स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं इस इमेज में मिडिल पार्ट में, यू आर वॉचिंग द इन द मिडिल पार्ट व्हाट, रेज, एंड द राइट एंड द लेफ्ट साइड यू आर वॉचिंग व्हाट, मेंटल कन्वेक्शन सेल। सो cells are developed in the whole side and the molten magma tries to come out from on the crust part or the surface. So this is the cause of the movement of the plates. Iceland we discussed already. Iceland has a divergent plate boundary running through its middle. पेंजिया हम आपको बता चुके हैं, वी टॉक्ड ऑलरेडी और वी डिस्कस ऑलरेडी। द पेंजिया विच इज़ नोन एज द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज ब्रोकन अप इन बिफोर 250 मिलियन ईयर्स अगो, वी डिस्कस्ड, ओके। कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये देखिए यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, ओके, व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ ड्रिप कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो थोड़ा ऊपर। तो ओशन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और कॉन्टिनेंट की डेंसिटी उसकी तुलना में कम है एज कम्पेयर टू द लेस, ओके। सो यहाँ आप देखते हैं, और कॉन्टिनेंट अगर आपस में टकराएंगे तो जिसकी थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ ड्रिप कर जाएगा, जिसकी कम है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो माउंटेन बन गए, ठीक है। कॉन्टिनेंट कॉलिजन होता है, कॉन्टिनेंट ओशियनिक क्रस्ट कॉलिजन भी होता है, ओशन कॉलिजन होता है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे जाएगा। लेकिन कीप इन योर माइंड व्हाट, ओशियनिक प्लेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, और उससे कम, सॉरी, ओशियनिक प्लेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी और उससे कम कॉन्टिनेंट, ठीक है। और कॉन्टिनेंट से भी कम जो ऊंचे उठे हुए पार्ट हैं, माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह, इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। हिमालय बिल्डिंग के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, आप जानते हैं। पैसिफिक रिंग के बारे में, अबाउट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वी डिस्कस्ड, ओके। बताते हैं कि इंडिया जो था कभी अंटार्कटिका का ही पार्ट था और धीरे धीरे टूट करके वो आज इस स्टेज में आया है, ठीक है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए मूवमेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। कॉन्टिनेंट जॉइन टुगेदर हम आपको बता चुके हैं, पहले भी हमने आपको बताया। कोस्ट लाइन मैचिंग, इसे जिग्सा फिट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द जिग्सा फिट थ्योरी, ओके। इफ यू वांट टू मैच or fit the South America and the Africa, it is easy to fit it together,
बोथ ऑफ दीज फिट टुगेदर। ओके, ये बात अल्फ्रेड वेगनर ने भी कही थी अपनी सपोर्टिव में। और फॉसिल स्टडीज से भी ये पता चलता है, ये एविडेंस बताते हैं कि ग्लेसोप्टेरिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सपोर्टिंग what these parts were part of the supercontinent. Clear? Fossil distribution you are watching in this. ये देखिए fossil formation of the freshwater reptiles. ओके, मेसोसोरस। अब ये देखिए, ये लैटिन अमेरिका में भी इसके फॉसिल्स हैं और साउथ अफ्रीका में भी इसके फॉसिल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये फॉसिल्स आप देख रहे हैं सबके, ये फॉसिल्स इंडिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में एक जैसे फॉसिल्स का पाया जाना है ना। ये क्या बताया ग्लेसोप्टेरिस के बारे में, आप देखिए ग्लेसोप्टेरिस। ये ग्लेसोप्टेरिस लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में मिलता है। तो किस बात का एविडेंस है ना। दिस इज प्रूव व्हाट ऑल द पार्ट ऑफ द South America, Africa, Antarctica, India and Australia were one, okay, and they were connected to each other, and all of these were the part of the supercontinent. Why do we know the continents move? Already we discussed through the GPS system, okay. ये फॉसिल्स एक जैसे फॉसिल्स मिलते हैं। पजल जिग्जाफिट के बारे में मैंने आपको बताया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन सबको एक साथ जोड़ा जाए सो इट इज़ वेरी इजी टू फिट दिस। ठीक है, हमने फॉसिल्स के बारे में देखा, फॉसिल्स भी एक जैसे मिलते हैं। रॉक माउंटेन के अगर उनकी कार्बन डेटिंग मेथड से पता लगाया जाए तो लगता है कि सब एक जैसे हैं, रॉकी और एंडीजी एक साथ ही बने हुए हैं। ठीक है, अफ्रीका के माउंटेन, ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन, है ना, इन सब की जो एज है एज पर दी कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज सेम। तो ये भी एविडेंस है। यहाँ मैंने आपको ग्लेसोप्टेरिस फॉसिल दिखाने का ट्राई किया है। सो यू आर वाचिंग द ग्लेसोप्टेरस वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन द लैटिन अमेरिका एंड द अफ्रीका एंड द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड and the India. Now all of these are the evidences which are supports that all the continents were part of the supercontinent. ये evidence के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। लैमिंग, एक्चुअली ये लैमिंग एक एनिमल है जो कभी यूरेशिया से और अमेरिका की तरफ जाते थे, लेकिन अचानक से जब ये कॉन्टिनेंट टूटा, पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटा, तो वो बेचारे अटलांटिक ओशन में गिर गए। ओके, तो उनके फॉसिल्स आज भी मिलते हैं। सो ये जस्ट लाइक ए रैट यू आर वाचिंग लैमिंग। तो फॉसिल्स ऑफ लैमिंग इज सपोर्टिंग दैट व्हाट यूरेशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका वर पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। ओके, लैमिंग कॉन्टिनेंट। स्प्लिट टेक्टोनिक भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, यहाँ आप देखते हैं, ये देखिए मिलियन ईयर्स अगो 540 स्टार्ट हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और आज प्रेजेंट कंडीशन में ये इस तरह से दिखाई देता है। हमने बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, माइनर और मेजर प्लेट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इंक्लूडिंग पेनिनसुला इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल पोर्शन, दिस सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके, मैंने आपको बताया कि आज से 71 मिलियन ईयर्स एगो जो इंडिया की लोकेशन थी दैट वाज नियर टू दी अंटार्कटिका। ओके, ये आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका से टूटना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे 55 मिलियन ईयर्स एगो ये इक्वेटर के पास आ गया और 35 मिलियन ईयर्स एगो ये इक्वेटर से ऊपर चला गया। 10 मिलियन ईयर्स एगो ये इसका साउदर्न पार्ट इक्वेटर के नज़दीक आ गया और आज तो आप बिल्कुल देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है
वो इक्वेटर से काफ़ी दूर आ गया है, लगभग 8 डिग्री 4 मिनट हमारा साउदर्न लैटिट्यूड है। ओके, तो इक्वेटर से लगभग 850 किलोमीटर फार अवे वी आर सिचुएटेड। ओके, तो आप इसमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. I hope this video and the slide come lecture will be fruitful, helpful to understand about the plate and the plate tectonics and why do we plates move and the plate boundaries, divergent, convergent and the transform and the movement of the India and the evidences, jigs of it theory, etc. Thank you so much.